پر لعنت ڈالتا ہوں. صرف عامر نذیر صاحب سے آپ اچھا بہیویئر رکھتے ہیں, صرف ان کا خیال رکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ بد اخلاقی کرتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ عامر صاحب کو بولیں گالی دے پہلے, ابھی اٹھا کے نیچے پھینکوں. مسٹر بومباسٹک نے آ کے آپ سے شکایت کرنے لگے ہیں, بیچ میں ان کو کیا حق تھا کہ اس کو بات کو کاٹے اور اس کو گالی بات کرنے لگ پڑتے؟ صبر میری بات بات, یہ بات نہیں, اس کو اٹھائے آپ مسٹر بومباسٹک کو. بار میری بات نہیں پوری, ہر باری میں میری بولتے ہو تو میں بھائی میری بات کو ابھی گالیاں دوں میں میں آپ سے جو شکایت کر رہا ہوں اس کو بھی آپ سنیں اور اس پہ عمل کریں. شکایت میں نے بولنا نہیں مجھے ہے, برا نہ میں کہیں. نے تمہارا شکایت نامہ سننا ہے, میں نے کوئی بات نہیں کرنی. نہیں تو ان کی شکایتیں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, ان کی سن رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جب تک احمدی نہیں ہوتے بڑے علمی اچھی طریقے سے بات گھنٹے سن رہے ہوتے ہیں, وہ گالیاں بھی فسادی لوگ آ گئے ان کی شکایتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں. انجام دیکھ لو بھائی, براڈ بند کرو, گالاں کٹو ایک دوسرے, براڈ بند کرو. ٹھیک ہے, وہ عامر نذیر آپ کے پیارے ہیں, وہ آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے. جیسے 7 بھائی میرے گھر میں ہیں, سکے بھائی, لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو بھائی نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہوتی ہے. جو بھائی نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے. آپ نے آنا ہو نہیں آنا نہ ہو, میں کروں گا. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو بھائی نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے, میں ان پر لعنت ڈال دوں گا. اور بتا یار چھوڑیں یار, طلعت صاحب کیا لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, بے ایمان لوگ, اور جا چھوڑے, فرقہ پرستی, کوئی حال نہیں ہے آپ کا. عقیدہ پرستی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے عقیدوں کو جہاں پر ہم جھوٹ بھی بغیر وجہ کے اگلے کو آپ گالیاں دی جا رہے ہیں, بغیر وجہ کے گالیاں دی جا رہے ہیں. جاؤ نا بھائی, جاؤ آپ جاؤ, اللہ دے والے. گھنٹہ ہو گیا اس بندے کو کہہ رہا ہوں بات کرنے دو, بات ہی نہیں کرنے دیتا. میں بڑا سپورٹر ہوں سرکاری گروہوں کا, سرکاری مرزائی گروہ کا. میں نے شام کو ادھر جانا ہے, میں نے جا کے بتانا ہے میں نے یہ کر دیا. اچھا ان کی کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کیوں گالیاں دی, کہ عامر نذیر نے اسے کہا تو بڑا گالی باز ہے, اس لیے اس نے کہا تو فلانے دا بچہ ہے تے فلانا ہے تے تو فلانا ہے. یہ بات یہ دیکھیں صفائیاں دیکھیں. طلعت صاحب منو ایسے کرتے السلام علیکم. کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ انہیں گال نہیں کٹی ہے, پہلے کہہ رہے تھے باسٹک نے گال نہیں کٹی, جو پیش کر دی تھی پھر کہنا تسی انہوں گالی پاتے ہیں ملک صاحب کے ماڈریٹر تھے. او بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ بے ایمان ہیں, دجل ہیں. عقیدوں میں ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ ہر بات میں گروہ ہمارا جو کہہ رہا ہے, گروہ بندہ جھوٹ بولے کو نہیں, یہ سچ بولے, غلط کر رہا ہے, گروہ کہہ رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر میں پکا احمدی ہو جاؤں گا. وہ میں نے حق سچ کی گواہی میرا رب مجھ سے مانگ رہا ہے. میں آپ کی طرح بناوٹ والا, آپ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جیسے لوگ خدا ذوالجلال کی قسم قیامت والے دن احمدی ثابت ہی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے. تمہیں کیا پتہ احمدیت کیا ہے؟ جاہل لوگ. وہ ایک چیز بنا لی ہے کہ ملک جڑا انہاں نالے سارا پورا گروہ یہی ایک ہی کہانی کس ہے. وہ خدا کے بندے ابھی ریکارڈنگ سنائی ہے کہ گالی اس نے پہلے کہہ رہا تھا, نہیں عامر نے پہلے دی, ابھی اس کی کیا صفائی دے رہا ہے. ابھی صفائی سنو, ان کی صفائی دے رہا ہے. نیو نے کہا تھا کہ تم کو پاکستان میں کتوں کی طرح مار رہے ہیں. یہ گالی ہے, بری بات ہے میں مانتا ہوں, لیکن گالی نہیں ہے. یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے پاکستان میں, تم کو یہ لوگ ایسے مار رہے ہیں, یہ گالی ہے. ابھی یہ ایک ہے بات, اور دوسری بات کیا ہے, تو خنزیر کا بچہ ہے, تو کتا ہے, تو بغیرت ہے کہ نہیں. یہ دونوں ایک جیسی ہوگا یار. ابھی میں یہ دونوں ایک بناؤں تو میں سچا احمدی بن جاؤں گا, اور میں ان کو علیحدہ علیحدہ رکھوں کہ وہ صرف بات غلط ہے, یہ گالی ہیں, وہ بات غلط ہے, اس کا بات کرنے کا الفاظ چناؤ ٹھیک نہیں. لیکن یہ مانگتے ہیں کہ گروہ بندی کرو, گروہ کی سائیڈ لو, اور جو گروہ کی سائیڈ لے کے وہ سچا احمدی جو نہیں ہے, اور میں تمہارے جیسے, میں اللہ معافی دے دے تمہاری, ابھی چھوڑو ان باتوں کو. لیکن بھائی جان جو مجھے سمجھتا نہیں ہے, ایک بار سمجھتا ہے, میں اس کو 99 بار اور کہتا ہوں, وہ ملا کے 100 بار مجھے سمجھے میں نہیں ہوں, غلط کر لو جو کرنا ہے. یار یہ معذر ہے تمہارے بے ایمانی. صاحب میسج کر رہے ہیں کہ مجھے نیچے اتار کے آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں ٹوسک تک. ہم نے تو گالی دی ہی نہیں اس کو. بھائی کس نے گالی دی ہے اس کو؟
जो गाली बम्बास्टर ने दी है वो अरबी में थी, इसको समझ में नहीं आई। जो मेरी गाली है वो चाइनीज भी है, इसे समझ में आ गई है। ये इनका म्यार है, इनके ईमान का। आपने नहीं देनी मलक साहब, बात आ गई। अब एक मिनट, ट्रूथ सीकर उन्होंने गाली दी कब है आपको? एक मिनट। और दूसरा ये है मलक साहब, मुझे मॉडरेटर से क्यों उठाया आपने? और मैं सबको उठा दिया। सारे हटा दिए, एक भी नहीं छोड़ा। क्यों उठाया? नहीं मॉडरेटर ये उनकी ब्रांड है, उनकी मर्जी। फसाद पे दे भाई, तो गालियां जो देंगे जो नीचे देगा उनको कौन रोकेगा? ओ भाई मैं बैठा हूँ, ये अगर आमिर नज़ीर गाली देगा तो हो जाए, कौन मैं जब उतारेगा? देखूंगा, मैं म्यूट करूंगा, मैं उतारूंगा, सब करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे क्यों उठाया है? मुझे क्यों उठाया है? सबको हटाया ना, किस वजह से? बस मैंने क्या किया? उनकी मर्जी यार, जबरदस्ती है क्या? आमिर नज़ीर की बात सुन के फौरन मुझे हटा दिया है। आमिर नज़ीर की बात सुन के मुझे फौरन हटा दिया है। ओ भाई हमें भी उठा दिया उसने, ट्रूथ सीकर हमें भी उठा दिया। यार कितने फसादी आदमी हो आप लोग। भाई आप मॉडरेटर क्यों उठाया मुझे आपने? ओ भाई हमें भी हटा दिया ट्रूथ सीकर। कोई यार नहीं नहीं, मुझे नहीं उठाया ट्रूथ सीकर, मुझे नहीं उठाया मॉडरेटर, मुझे नहीं उठाया, बाकी उठा दिया। ना करो यार, ना करो, नवा फसाद ना पाओ। छोड़े यार मलक साहब, और उतार के मुझे गालियां दे रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, ओ भाई सबको नहीं हटाया गाली दी उसने। ओ भाई मजाक की बात नहीं, मुझे तो उठाया ना आपने, उनको बनाए ना आपने, मुझे क्यों उठाया? मतलब सब आपने भाई एक जरूरी ऐलान सुने सारे भाई, तुसी नवी जमात ज्वाइन करो, नवी बराडा। हमारी जमात पे पिटने शुरू हो गए और ये तकरीबन घंटा 1.5 घंटा और पिटने रहेंगे। नहीं, आपने नियो को और आपी को नहीं हटाया, आपने ट्रूथ सीकर को उठाया। तू फसादी है, मैं सारे हटाया यार कंप्यूटर बंदा मारा है। आपको हटाना ही नहीं चाहिए था, आपको मुझे तो एटलीस्ट नहीं हटाना चाहिए था। आलो फड़ा और क्यों नहीं हटाना चाहिए था? सबको हटा दिया। मैं कहता हूँ, मैं आप नहीं उसकी बात सुन रहे थे। हैप्पी को ना खत्म करता, अजीब लेकिन जब बात है रसूल यार, आया, अजीब ये बात है। रसूल में सबको हटाया तो उनको भी हटा दिया। ओ मेरी जान छोड़ दो सरकारी अहमदियों मिर्जियों, मैंने बख्श दियो लदना। जैसे मिर्जा साहब की कोई बात सरकारी मुसलमानों को ठीक नहीं लगती, इसी तरह कुरान की कसम मेरी बात सरकारी मिर्जियों को कोई ठीक लगती है। गुस्से का मसला है इस बंदे को भी। अच्छा अहमद नज़ीर भाई अपना हवाला दे। उतार दिया है भी बगैर वजह के। आमिर नज़ीर के कहने पे मुझे मॉडरेटर से हटा दिया। न्यू भाजी नु चुक लो तला साहब, उन्हें कोई गल करनी। मैं और चले आया होते हैं बंदे पूरे, मैं किन्नू लाऊं? मैं जाना ना चले, मैं जाना। नहीं वो पीछे क्या हुआ? शॉप शूटर नहीं है, पीछे क्या हुआ? चलो शायद फिर तो ना कर कोई नहीं, ट्रूथ सीकर साहब ठंडे हो जाओ, कोई नहीं, इतना गुस्सा नहीं करी रखा है। वो अजीब पता नहीं हरकत करते हैं, पता नहीं। चलो सब दो सारे यार नहीं है, फौरन आमिर नज़ीर कहने पे मॉडरेटर से हटा दिया। ओ भाई नहीं, अहमद नज़ीर के कहने पे किया, उन्होंने सबको हटा दिया यार। अच्छा चलो साहब, बात ये है कि वो जो मुझे कह रहे हैं मैंने गाली दी है, मैंने वो मिर्ज़ा साहब के अल्फाज कोट किए हैं जो वो फरमा रहे हैं अपने जमात के लोगों को कि वो जो सरकारी मुसलमान है ये तुम्हारी अब देखो, अब इसको दोबारा चांस दिया जाएगा, वो अपनी बात को रिपीट करेगा। ओ यार मिर्जा साहब की बात आपको क्यों नहीं अच्छी लग रही? ये तो है लिखी हुई। और भाई उन्होंने लिखी, कहाँ लिखी, कॉन्टेक्स्ट क्या, इधर ये बगैर कॉन्टेक्स्ट के करी जा रहा है। अजीब यार, मजाक है यार। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा मैं सुन ले चलो साहब, फिर इनकी अब देखो मुझे मॉडरेटर से भी हटा दिया है, अब हमारे खिलाफ बातें भी होंगी। अच्छा नहीं तरह साहब, वो बोला जा रहा है कि मैंने कोई गाली दी है। मिर्जा साहब ने आपके खिलाफ बातें क्यों है, ये भी बात ठीक है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वो जो मुसलमान है ना वो आपसे आप पहले मुझे मॉडरेटर बनाएं आपकी औरतों को लौंडी बनाना चाहते हैं, कुछ हो वो कंट्रोल किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने हटा दिया। यार ठहर जाना, गलत करन दे। अगर आपने ये कहा है कि कोई गाली दे रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद नहीं हटाऊंगा, लेकिन इस तरह ना करें कि अगले के कहने पे मॉडरेटर बना के उते छाड़ो तो मिस्टर बम्बैस्टर को ऐसे ही उतार दिया। कैसा बच्चा आदमी है यार, मॉडरेटर बनाओ, मुझे प्रॉब्लम होती बना दो, जो उसने बात कर लेना। चल रो शाबाश जानवर यार तू 150 बंदा सुनदा वे, कोई शर्म कर, कोई वड्डिया गल कर। मॉडरेटर बनाओ। जानवर जे है हो कि सारे जानवर ही बैठे ने, मतलब तुम शर्म नहीं आ रही? कैसा बेगैरत आदमी है तुम अशरफ को जानवर कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सरकार 150 बंदे जानवर कह रहे हैं बैठा तू की बदमाश जे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੀਰੇ ਪਲੇਟ ਆ ਗਏ ਜੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਲਮ ਨਾ ਕੁਝ, ਗਾਲਾਂ ਜੋਗੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਲਾ ਨਿਊ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ 80 ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਪਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਚੱਲ ਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ। चलो उन बोली ना, फिर बीच ना बोली। अच्छा, तो तलत साहब मिर्जा साहब का हवाला है कि वो जमात के लोगों को कह रहे हैं कि सरकारी जो मुसलमान हैं वो आपकी औरतों को लोंडी बनाना चाहते हैं, आपका माल छीनना चाहते हैं और कुत्ते से ज़्यादा इज्जत देते हैं, कुत्ते को ज़्यादा इज्जत देते हैं आपसे। तो मैंने इसलिए कहा कि उनके नज़दीक वो जो सरकारी मुसलमान है वो आपको इस तरह कुत्ते की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं। मैंने उनका बोला, बदले में ये भी कहते हैं कि वो जानवर सिफ्त हैं, वो दरिंदे हैं जो हमारी कब्रों को ये करते हैं, हमारे जो कतबे हैं वो उखाड़ देते हैं, हमें मारते हैं, कुर्बानी नहीं करने देते। कम होना है कि नहीं? आपने मुझे मॉडरेटर तो मैंने उनकी बात कोट की। यार मैंने ट्रू भाई वो बात कर रहा, दीनी बात कर रहा है, आप दरमियान में यार। हाँ वो जो जैसा दीनी जो ठीक है ना, आप तमीज नहीं है यार महफिल में बैठने की। तो सीकर साहब मैंने अगर एक मॉडरेटर भी बनाया तो अब मेरा वादा है सबसे पहले आपको बनाऊंगा फिर दूसरा बनाऊंगा। नहीं, लेकिन आपने मुझे हटाना ही नहीं था यार। मेरी चलो साहब लो जी ਇਹਦੀ ਖੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਇਧਰ ਆ। ਟਰੂ ਸੀਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਚਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਲਮ ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਉਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਮੋਡਰੇटर बनाता हूं आपको, खेलो उधर आ जाओ। शाबाश यार, इल्मी बात करें, इल्मी बात करें, इल्मी बात कर ले यार, इल्मी बात जो भी करनी है मुझे मॉडरेटर बनाए पहले। मैं बच्चे ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਘਟਾਉਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ बड़ा और तू मैं कसम रब दी तौस बिल्ला भाई तेरा फीडर लीक हो गया और रोला कोई नहीं है। मैं खुदा होता तू इतनी बारी मंगदा, कसम रब दी मेरा ऐसा दिल है, मैं तेना दी खुदाई कम से कम दे। मैंने मैसेज कर दिया अल्लाह दा ना ही कर। मैं ये देखें, ये इस वक्त गालियां दीजिएगा, मॉडरेटर है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नीचे गालियां दी जा रही हैं सारी जगह। मैंने किसी मॉडरेटर ने तेनू कोई गालियां नहीं, तू नीचे ना पड़ यार, वजह की आपने मुझे हटा दिया। हां बना दियो बेचारे, आपने उनके कहने पे फौरन हटा दिया है, हमारे कहने पे। मलक लाला इन्हू बना दे, ने जेड़ा कट्टा खोलना ना खोल लवे यार, बना दे इन्हू। सबसे पहले बुढ़िया तेरा रोना पा लिया यार। सारे मॉडरेटर मैंने खत्म किए, एक आपकी करता तो मेरी गलती थी, सबको किया यार। लेकिन उन्होंने हमें भी खत्म कर दिया यार। गाली यार उनकी मर्जी है, तूने जबरदस्ती करनी है। गाली गुफ्तगू चल रही थी, मोबाइल पे अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, चुप के मॉडरेटर बना के गलत काम ना कीजिए यार। 200 बंदा बैठा हुआ था, तेरी वजह से 113 बंदे रह गए बाकी। मैं मॉडरेटर है, जो गाली देगा उसको मॉडरेटर। हाँ बना दे। अच्छा तलत साहब गुफ्तगू पर वापस आते हैं। ठीक है गुफ्तगू पे वापस तलत साहब, अच्छा वापस चलते हैं। हाँ, तो वो जो शराइत थी वो मोबाइल में तो नहीं दी जाती। आमिर साहब ने उसका वो जवाब दे दिया है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला, कौन झूठा पड़ा उसमें, ये सवाल था, उधर ही खड़ा है अभी तक। हाँ जी ट्रू भाई, दो जवाब। गल करिए मॉडरेटर कौन है हुण इस वेले किन्नों? सीकर साहब सीकर साहब दे मुंडे दे फुल खातिर जमा रखें, सब खातिर जमा। किसी के साथ एक बाल बराबर मेरी बराड़ पर नाइंसाफी नहीं हो, कोई है नहीं है कोई। बिल्कुल जबरदस्त। इन दफा ब्रॉडकास्टर को ऐसे ही होना चाहिए सर, जो गाली निकाले उसको उठा के नीचे फेंकना। ज़्यादती ते तुसी डक लैंदे हो, नहीं होण दिंदे, पर वो जेड़ा उत्ते थल्ले वाला तमाशा हुंदा ना, चुक के थल्ले मारे, थल्लों चुक के उत्ते पैंडा ढेर हो जांदा, सफर ढेर हो जांदा। और बड़ा पैंडा हो गया सन उत्ते थल्ले जे उत्ते जाण दे बड़ा टाइम। सर देख लो ना, 1.5 घंटे तो गुफ्तगू नहीं हो पा रही ना, 1.5 घंटे तो गुफ्तगू नहीं हो पा रही। उधर ही मकसद थी, वो मामला खत्म हो गया, आप सुकून रखें, कोई नहीं नीचे अच्छा ट्रू सीकर, मुझे ये बताओ यार, मेरा कुछ क्वेश्चन है। सुकून में रहे, एक मिनट बेटा, अमीन नजीर साहब, सुकून में रहे, आपके साथ हेलो ऐसा नहीं होगा। ओ बेटा किन्नू किया तू भाई यार, छोड़ दे यार, वो अल्लाह दा नाम है, थल्ले बढ़ जाके चढ़ी ट्रेन। अच्छा आमिर नजीर साहब, आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी। थल्ले लाता एक बंदा शहीद करता है भाई, तो वो जो करेगा इंसाफ होएगा। अब क्या होगा भाई, सीधा फैसला करेगा। और किन्नू लाता बंदा थल्ले ट्रुथ सीकर ने, और किन्नू लाया थल्ले यार बंदा यार, जिसने लाया किन्नू है ना ते दसो। आ जेड़ा यार बैठा काल पाओ थल्ले की ना होदा, फरहान अली की ना सी उन्हां दा।
اور نہ پہلے 10 فرحان علی اچھا کے جس نام ٹائم دی کاروائی پیندی ہے تلے صاحب اس ٹائم ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਓਏ ਟਰੂ ਸਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸੁੱਤਣ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਤੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮॉडरेटर ਜੀ ਪਾਏ ਦੇਨੇ ਜੀ मॉडरेटर ले लो उसने बदतमीजी किया तो नीचे ही जाएगा ना। अच्छा आप बदतमीजी क्या क्या बदतमीजी बताएं क्या की? उसने कहा कि मैनू थले ला के तेरी ऐसी तैसी ऐसे वो जो कर रहा था तो मैंने नीचे उतारना। आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा मलिक साहब, आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा। मुझे बख्श दो, मुझे जियो मसीह है शेरा अच्छा दूसरी बात है आमिर नदी साहब, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। आप अगर कोई गाली देंगे तो मैं मलक कमाल साहब को बताऊंगा, मैं खुद नहीं उतारूंगा। ऐसा ट्रूथ सीकर साहब आ गए, कोई मलक कमाल साहब को बताऊंगा। सुने जो मॉडरेटर मेरी प्लाट पे है, गाली वाले को आप उतार सकते हो, गाली वाले को मैंने इसको गाली करते हैं कि मैं उतार सकता हूँ या आपको मैं बता दूंगा तो आप उतार दें। आपकी बनाई ना जाए, गाली अपनी सुन ले। और मेरे बगैरत तो भी बोल दो 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ गाली बनाई ना जाए। गाली देने वाले को जो भी मॉडरेटर आप होंगे 2 और बन जाए वो उतार के नीचे फेंक दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन गाली बना के नहीं कि गाली मैं इसको गाली मानता हूँ। ठीक है, ये सूल तय आ गया। अब सवाल पे आ जाए तले साहब, वो जो सवाल है कि मोबाइल के बाद हमारे भाई हैं, एमडी भाई हैं, बहुत लैक हैं, यही जवाब दो जी। अच्छा एक बात सुन लें, एक बात तो सुन लें, मोबाइल ऐसी चीज़ है जो मुनाजरे से मुख्तलिफ है, इसके अंदर दलाइल नहीं दिए जाते, ये वो आखिरी हद है। कुरान में भी इसका इशारा मिलता है। एक औरत के दौरान भी अल्लाह ताला कहता है कि जब 4 गवाह पेश किए जाएं तो 5वीं दफ़ा अल्लाह के सुपर्द करके लानत डाली जाए कि जो झूठा है उस पर अल्लाह का जो है वो अजाब नाजिल हो। तो ये कुरान में भी इशारा मिलता है कि मुबाहिला वो आखिरी स्टेज है जब दलाइल से काम गुजर जाता है। तो अब ये ऑडियो में सुना, खलीफा साहब ने जो है वो मुबाहिला कबूल किया, चैलेंज उसका, और फिर उसके बाद क्या नतीजा निकला, ये सवाल है। यार न्यूज़ साहब ये सवाल नहीं है, आप भी ना फनकार बनो। उधर खींच रहे हैं, तुसी उधर खींच रहे हो। बात ये होती है जब मोबाइल होता है, किसी चीज़ पर एतराज़ किया जाता है कि ये तुम्हारी अकीदा गलत है, ये तुम्हारा गलत है, वो कहते हैं ये गलत है। वो बताओ क्या चीज़ गलत है? ऐसे ही मोबाइल हम खेलें, आज ही मोबाइल 2000 मोबाइल हो गया जी, तू गलत है, नहीं तू गलत, क्या गलत है ये नहीं बताना। दरअसल वो एक्सेप्ट करने से पहले होता है, जब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाए, मोबाइल उस पर सिग्नेचर करके उसको कबूल कर लिया जाए, फिर उसके बाद नहीं होता कि भाई अच्छा मैंने तो जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया है वो आपको काबिल कबूल क्यों नहीं है कि मुखालिफों ने ये चीजें लिख के दी हैं? ये हम उन्हें कह रहे हैं काबिल कबूल है वो भी, लेकिन वो मुखालिफ जो है उसका काम बनता है वो दलील दे ना दे, लेकिन मोबाइल कबूल हो गया, फिर उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, आपने ये जो हुजूर ने फरमाया है कि वो कहते हैं, ये हम कहते हैं कि हम ये करते हैं, या हमारे जो भी ये मुनाजरे वाला है वो कहता है? यार ऐसा ना इंसाफी ना करें ना, हक की और इंसाफ की, अदल की बात करें। तो ये जो हुजूर ने शराइत इधर बताई हैं, उसी टाक के अंदर हमने कोई थोड़ी वहाँ से लेके थोड़ी ऐड नहीं की हुई, उसी में जहाँ पर वो चीज़ ऐड की है, मुनाज़े की बात की है, उसी के अंदर ये चीज़ें वो कहते हैं। इनमें एक भी बात इस पर मैं मुनाज़ा करता हूँ, मेरा बच्चे मर जाए, मैं एक चीज़ अगर मैं अहमदी हूँ, एक चीज़ भी अगर मानता हूँ, इसकी एक चीज़ भी ठीक है, सब गलत, सब इल्ज़ाम है, मैं मुनाज़ा करता हूँ। आ जाओ, जिसने करना करो, मारो अपने बच्चे या मेरे बच्चे मारो, आओ मैदान में, कौन करता है? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਐਮਡੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਐ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं जो मानते, मिर्जा मैं तार कुरान की कसम खा के मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। आओ आना, अपने बच्चे मार या मेरे बच्चे मार, ऐसी ये काम कर दें। अच्छा, तुम्हारी जमात के, आपकी जमात अहमदिया के लोग मिर्जा साहब की जगह को यानी कादियान को काबा नहीं मानते थे?
बिल्कुल भी नहीं, काबा ना तौबा नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो मानता है वो यजीद का बच्चा है। मेरी स्क्रीन ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਨਫਲੀ ਅੱਜ। ए भी ऐसे ऐसे माशाल्लाह ईमान वाले अपने नहीं दो दो तीन तीन बोल, साढ़े नहीं सारे नहीं बोल रहे, मेरे ना सारे नहीं बोल रहे। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਮਨਸੂਰ। मैं कह रहे थोड़े सारे दे इंसाफ सर चढ़ के बोल, जैसे इन्हां बेगैरतां दे साडे पाकिस्तानी नहीं कहते जादूगर हरामी कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, थोड़े सारे दे इंसाफ सर चढ़ के बोल रहे। किदी वड्डी करनी है ते किदी निक्की करनी है, कोई नहीं कर लेंदे मलिक साहब। मेरे को ना हुण वड्डी कराओ इस उम्र। नहीं नहीं कोई नहीं मसला कर लेंदे। हाय नहीं अजय भी नहीं हुई तो एक मिनट में जरा ना सही कर लेंगे। पहले किताब का नाम, राइटर का किताब का नाम, सफा नंबर बता के फिर इसको ओपन करें। जी किताब ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। और बता देना, ठीक नहीं हो रही, नहीं हो रही। बताए ना। आमिर भाई को है, आमिर भाई ला देंगे ने। आमिर भाई को बड़ा परफेक्ट ऐड लगा देंगे। आमिर भाई तुसी लगा दिओ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ WhatsApp ਤੇ। ना एक बंदे को उतार के मिस्टर मुबैसिर को ले ऊपर। मैं खुद ले जाना, तुसी उन्होंने पहले ले लो। ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਲਾਇਓ। ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आपका कैमरा आना, महमूद भाई अपना कैमरा बंद करो। ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਧਰੋਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤਾ। कोई नहीं सबर रखो मलिक साहब। मलिक साहब जी साहब, जितनी देर तक नहीं लांदे उतनी देर तक मैं एक क्वेश्चन कर लूं अगर माइंड ना करो। जी कर लो जी। थैंक यू सर। मलिक साहब यलाश किस लैंग्वेज का वर्ड है? देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਕਰੋ, हक और इंसाफ ਦੀ ਗੱਲ करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिस अच्छे नाम से मुझे पुकारो वो मेरा नाम है। आपकी दुनिया में लाखों ज़बानें बोली जाती हैं और गल तो मैं कहना तुझे बेहतर खुद जवाब दे दो। नहीं 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 मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं आप खुद जवाब दे प्लीज, आप इल्म वाले हैं, आप खुद जवाब दे। म्यूट कर देगा तेनों, चुप करके सुन यार गल इस तरह बिहेवियर मत करे, वो मेहमान है, उनके साथ ऐसा बिहेवियर ना करे। बात ये है प्यारे भाई, लग गया सफर। वो तो हवाला भी आ गया, 2 मिनट हवाला ले रहे थे। चलो हवाला पहले कर लो तुम। जी मलिक साहब ये मिर्जा साहब के एक मुरीद हैं, मुरीद जिसका नाम है शहजादा अब्दुल मजीद साहब। शहजादा अब्दुल हमीद शमीद मेरे लिए कोई उम्मीद, और ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं नहीं जानता, मिर्जा साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। काम कर यार तू, मैं यार और मिर्जा साहब लिख रहे हैं, ये मिर्जा साहब भाई मिर्जा साहब लिख रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा। मिर्जा साहब की अपनी तहरीर है, उनकी अपनी किताब है। डेरिंग साहब उनको बता दें किताब नंबर वाला दे दें। 14 सफर नंबर 374 पे है, और तो ये आपके सामने सफा लगाया हुआ है, जो रूहानी खजाइन में है, तो वही दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, और वही दिखा रहा हूँ मलिक साहब, वही दिखा रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। रूहानी खजाइन खोलो, वो खोलो।
ये रूहानी खजानी उधर ये से रूहानी कह रहे खजानी हो, खुली हुई और उनकी क्या किताब है, उधर से कह रहे हो ऐनक पता लगाओ। नहीं केड़ा शहजादा, ऐनक लगाओ। उधर की किताब है, हुण कह रहे हो और मिर्जा साहब अपनी किताब में अपने इस मुरीद की बात लिख रहे हैं, मुरीद की बात। हाँ, अपनी ये किताब बोलो में। मिर्जा साहब लिख रहे हैं। हाँ जी, जो मिर्जा साहब लिखते हैं कि ये शहजादा अब्दुल हमीद साहब हैं, उन्होंने मिर्जा साहब को खत लिखा। अब मिर्जा साहब वो खत अपनी किताब में छाप रहे हैं। फारसी में उन्होंने शेर लिखे हैं। तो पहला शेर है, ए शहे वाला हमम साया ए फजले खुदा। इससे जो है ना ये फारसी वाला जो नज़म शुरू हो रही है, यानी ए शहे वाला हमम, ए बुलंद हिम्मत, साया फजल खुदा, तुम पर खुदा के फजल का साया है। जानो दिले अंबिया ताज सिर औलिया, तू अंबिया की और दिल हो और औलिया के सरों का ताज हो। इसमें उन्होंने शेर लिखा हुआ है सबसे नीचे से ऊपर वाला, ताहनीयत आमेज गुफ्त हातफ़े गैब हम चुनीन, कि गैब से आने वाली आवाज़ ने मुबारकबाद देते हुए यूं कहा, काबा कुए तेरा किबला हाजत रवा, तेरा कूचा काबा है और तेरा दर हाजतें पूरी करने वाला किबला है। हेलो जी, मिर्जा साहब के मुरीद मिर्जा साहब को कह रहे हैं कि तेरा कूचा काबा है और तेरा दर ही हाजतें पूरी करने वाला किबला है। और मिर्जा साहब इसके बारे में क्या लिखते हैं कि खुदा ताला ने इसको हिदायत और हक की तरफ खींचा। मिर्जा साहब ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ नहीं, ਕਾਦੀਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ नहीं ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬਾ। माँ सुने, अब सुन लो बात। मैं सुना। शायर जब भी कोई शेर कहता है वो तमसीली हाँ। रंग में करता है, शायराना बात करता है। ये शायराना बात है। अच्छा। इसमें किसी अहमदी का एक मिनट इधर कितने अहमदी बैठे हो भाई, तुम्हें कुरान गरक करे तो उसी के साथ आप कादियान को काबा किबला मानते हो? नहीं। नहीं और मलक भाई साहब, अहमदी आप बैठ- मानो या ना सुन, मानो, सुन, मैंने सुन, पूछा सुन, था कि आपके सवाल अहमदी आपके जमात मेरे के मुंह लोग से नहीं मानते सुन। या नहीं मानते? ओए जाहिल, जब आपने कहा नहीं मानते। ओ यार सुन लो, अभी ये एक सवाल करते हो ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। यार, आप लगवाई ना मैंने मतलब कौन सी तुसी गाली तो दी है? मिर्जा साहब की कोई भी नहीं मानते। दे दे। ये बंदा मानता था या नहीं जिसने मिर्जा तुम तो साहब को ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खत? वसल्लम की एक नहीं मानते, तुम तो कुरान की एक नहीं मानते, सारे ठीक है। अकीदे बार बना बिदते बनाई हुई है। बड़ा नहीं, बड़ा ये बिदअत। बंदा जिसने खत लिखा है मिर्जा ओ साहब भाई, को, आपका ओ मुरीद, भाई, ये ओ मानता भाई, था कि नहीं मानता था? ओ भाई, ओ पिटड़ियां पिटण वाले, ए तले एमडी बैठे थे, मैं एमडी और कोई एमडी हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, और भाई एमडी है, कोई एमडी बता हाँ दे भाई, कि ये एमडी नहीं था कादियान जिसने ये खत लिखा मिर्जा साहब को? को- ओ वो शायर है जॉइन यार ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ? अलामा इकबाल के शेर ले लो। मिर्जा साहब का जरा साबी आ, वो अगर गलत कह रहे मतलब इसी तरह लोगे तो आपको फतवा देना पड़ेगा, ये बंदा काफिर है, जाहिल आदमी, पता अच्छा, है नहीं की जाहिल मतलब की की है, जाहिल काबा की- कुए बस कहना है। किबला हाजत मैं रवा, बुगदी ਇਹਦਾ ਕੀ अहलियत मतलब है? जा चला, पेटे मैं होना बुगदी हुन पिटी अहलियत जाएगा चला। पेटे चीखा मार पेटे होना। अच्छा मलक और साहब की बहुत मतलब है सारे- कि तेरा बहुत सारे- तेरा कूचा काबा है और तेरा दर काबा हो गया किबला है। हाजत रवा है। पिट पिट ਇਹਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ बहुत ਚੁੱਪ सारे- ਕਰਾਣਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ बहुत ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂ? सारे- लिखिया है काबा कुए तेरा। बहुत सारे उलमाओं ने यही बात लेकर अलामा इकबाल पर फतवे लगाए, ये काफर है, कुफर करता है, ये नऊज बिल्ला। वो शायराना बात आप शायराना तरीके से समझनी है। तो बता दो ना शायर शेर का ओ क्या भाई, मतलब ठीक है? तेरा हमारा दर काबा किबला है, का इसका क्या ध्यान है, मतलब? जे कुछ करना ने, जे कुछ अगे बिगाड़े ने, इतना और बिगाड़ो, जाओ बिगाड़ो, जे करना करो। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ मलक साहब, ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ है, ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ जो ਕਲਾਮ तुम ਦੀ। कह रहे हो ना, अगर- जो तुम कह रहे सुनो हो तो सही। हमारा दीन यही है, अब जे कुछ सुनो, उन्होंने सुनो, निकाल लो, सुनो। सब वही है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ वो ਮਲਕ यार ਸਾਹਿਬ, हम लोग कह रहे अगर नहीं मानते, ऐसे गाल जाहिल तो कर के दो। बच्चे कह रहे नहीं, गाल तुम कर- मंदी हो। ਗੱਲ गाल ਤੇ के ਕਰਨ ਦੋ बंदे- ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਜਤ ਸੀ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਜਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੌੜੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ।
यार आमिर साहब, मैं कह रहा खुदा की कसम, आप जो से लोग बेवकूफ जहालत जब करते हैं ना कि हमारा अकीदा हम नहीं मान रहे, जबरदस्ती साडे पेटे पा रहे हो, नहीं साडे कोल इतराज नहीं रहंदे, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ बढ़ावांगे, गलत अल्फाज ला के गलत ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲੀ ਇਮਾਨ ਅਕਲ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ मेरे नाल ना गल करो, इल्मानी इल्मी इन्हां नाल करो। मैं मानता हूं, मेरा जे कोई करना ने कल रुहानी खजान- मैं तौबा भी मंगना, ਤੁਹਾਡਾ- किबला भी मनना, नौज बिल्लाह अल्लाह दा बेटा सुनो ना, है, सुनो। खुदा भी मनना, जा रहे मैं सारे कुछ मनना। सुनो तो सही ना। जिन्हें जे कोई करना है कर लो, जाओ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ बड़ी ਨਹੀਂ, सही ਤੁਸੀਂ बात ਰੂਹਾਨੀ यह है कि ਖਜ਼ਾਨ इनके ਪੜ੍ਹੀ पल्ले ਨਹੀਂ। कुछ है ही नहीं, अपनी ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ तरफ से ਚੁੱਪ बातें ਕਰਾਓ, बनाएंगे ਇਹਨੂੰ और ਚੁੱਪ उस ਕਰਾਣਾ पे ਚਾਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ चीखेंगे। ਮੈਂ चुप करावां? मलक साहब कितना बड़ा निशान है साहब, कि कराना कि मैं आप- चुप कराना? उसके खिलाफ इनके पास कुछ भी नहीं। और एक मिनट कुछ नहीं है, आमिर साहब को बात करने दे, फिर अब मैंने नहीं बोलना, आपने जवाब देना है। हाँ, जी हम ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। यार ना करो यार, अभी तो टू सीकर साहब आपकी सारी सिर्फ बातें आपको ये मान- कह रहा हूँ कि तल्ला साहब आप ही बात करें, मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सरकारी खजाइन का मुताला कर रहे हैं बकौल सवाल। ਹਾਂ ਗਲਤ सरकारी खजाइन गिरवी का मतलब ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਤਸਦੀਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਫ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰਫ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਖਿਲਾਫੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਖੋਲੇ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। हाँ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ मेरी आवाज तो जा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ अगर मेरे से बात करनी है ਚੱਕਣਾ ना, ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, अगर मेरे ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ मेरे ਕੋਈ से ਜਵਾਬ। बात करनी है ना, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਲਕ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ- ਤੂੰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਨਾ, ਬਰਾੜ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੂਲ ਤੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਰਤ mute ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਟ ਜਵਾਬ ਬੋਲੋਗੇ, ਦੇ। ਹਾਸ਼ਿਆਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ, ठीक है? ओ भाईजान, अगर आप जवाब गलत दोगे तो वो इतराज तो करेंगे, भैया जवाब इतना गलत है। जवाब अगर नहीं समझ आता, कोई नहीं आता, उस पर तो नेक्स्ट सवाल है, सवाल करें, लेकिन अपनी बात को वही बात रिपीट नहीं करनी, सिर्फ जो नेक्स्ट बात है वो करनी। अगर ऐसे हो सकता है तो ठीक है। यानी ट्रुथ सीकर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हमारे अकीदे हमने बताने हैं। ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੋਸਣ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। भाई ਬਤਾਓ हम ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जो हम ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। मैं अच्छा, जो उन्होंने गलत कह सकते हैं कि नहीं बताऊंगा कह उस पर सकते? सवाल उठाना है। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵਾਂ। ਲੈ सवाल ਕਰਨਾ क्या ਗੱਲ ਮੈਂ है? ਹੁਣ। सवाल क्या है? सवाल मैं दस और अगर ये सुनिया सवाल नहीं है। रिपीट हुआ, अगर ये सवाल पिछली बातों की रिपीट हुई तो मैंने नीचे उतार देना है। ये हक आप दे रहे हैं मुझे? देखो अल्लाह ठीक है, का तू ला नाम के है, व्यक्ति जरा मैं तेरा मुंह से आन लगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ बात ला के रिकॉर्डर से होगी। यार ऐसे नहीं कहते टू सीकर भाई। तुम यार मुझे बच्चे उतार के थोड़ी देख ना रहे यार, हैं, मैं यार। लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये बात तुम अपनी बरातों में मत, मैं की बरातों में नहीं नीचे बैठे, आई ना समझ। हाशियाराई करेगा तो मैं नीचे उतारूंगा ऐसे। तुम मुझे उतार के देखना, ठीक है? इस असूल हाँ, इस तुम असूल के उतारना तहत मुझे, बात पहले भी करने का तूने हौसला हरकत है। की। गाली के अलावा मैं
नहीं मैंने नहीं आपको बताया मलिक है, साहब, मैं गाली एक कोई डिसिप्लिन दे के साथ तो बात नीचे करने का, उतार, गाली के अलावा किसी को नीचे तो फिर मुझसे उतारना बात ना नहीं करें, उतारना है। ये मुझसे बात ना मेहमान है करें। मेरे घर वो पर ठीक आए है, हैं, तलत बेशक साहब, काफिर है, मेरे नजदीक मैं हिंदू है, सिख है, लेकिन मेरे घर में आके मेरे मेहमान। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि मेरी बात करने का जो असूल है मैं इनके सामने रख रहा हूं। अगर मेरे से आपकी बात करनी है, का असूल क्या है? जहाँ मैंने तेरा आपको कोई ना असूल बताया। नहीं करे ना चलना, बात, जहाँ मलक साहब का असूल ना चलना, करे ना मलक साहब बात की मेरी, बरात है। फिर मुझसे ना बात करे ना। हाँ, कोई गाली दूं मेरा तुझे तो फिर असूल बात ये करना, है, मलक साहब खुद ही अगर बात हिम्मत देंगे। है तो बात करके हाँ। रिपीट करोगे तो मैं नीचे उतारूंगा, हाँ। हाशिया नहीं, राइज ये तो करोगे तो बात- नीचे चलो मैं उतारूंगा। बात करके रिपीट कोई करने लगा, सवाल तुम है? मुझे उतारना। कोई सवाल है, ये कोई सवाल रिपीट करने है लगा तो वो हूँ। कर सकते हो, ताहनीत लेकिन अमीर रिपीट नहीं गुफ्त करना। हातफे ऐब हम चुनीन। मैं रिपीट करने लगा हूँ, ताहनीत आमेज गुफ्त हातफे ऐब हम चुनीन। बगैर वजह के मुझसे कोई बात ना रिपीट करे, करने लग, मेरे से असूल तय करके फिर बात करे, किन्ने लाया ज़ियाबा इन्हू थल्ले? क्योंकि उसने बात क्यों शुरू की, मेरे से मलिक असूल तय साहब, की है, बांदर दे हाथ में मैंने बात- मुझसे फिर बात ना करे, मुझसे बात ना करे। बांदर दे हाथ विच इस बांदर अब दे हाथ इसी विच को भाई अब आपकी साढ़े बात बंदे पे थल्ले को चल रहा है। नहीं, तुम्हें मेरे से बात ना करे ना, मेरे से बात ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ करे। ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ मैंने अपना असूल बताया है, मैंने अपना असूल बताया, मेरे से बात अगर करनी है ये असूल है, बगैर असूल के बात मेरे से कोई करेगा मैं उसे भी नीचे उतार दूंगा, वरना मुझसे बात ना करो। ऐ मलक साहब ऐ काम कराने वास्ते सानू बुलांदे हो। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ नहीं लेके क्या दो मलिक साहब, जो आप जो बात करना चाहते हैं वो कर लें, अब जो मेरा असूल है मैंने बता दिया। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ नहीं लेके नहीं दे भाई, मैं असूल और आपके मैं सामने मलक रख साहब रहा का हूँ। मुखातब है तेरे नाम में मुखातब नहीं और है भाई चाहे उनकी तरफ से है चाहे जिधर से मर्जी आए, मैंने इस मलिक इस असूल साहब- के तहत जवाब देना है। ਮਲਕ मैंने- ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ। हो ना, हिम्मत करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ हेलो, ਜਾओगे। मैं फिर रिपीट करने लगा, ताहनीत हाशिया राइज आमेज होगी। गुफ्त हातफे गैब हम चुनीन। ਹੈਲਾ ਫਿਰ, हेलो। ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। अच्छा टॉपिक कर लेने आप ला थले ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ नहीं ला थले ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ तू लाया मेनू थले, मलक साहब ਮੈਂ ने ਪੁੱਛ चुक ਰਿਹਾ लिया। ਮੇਰੇ इतनी ਨਾਲ बड़ी ਗੱਲ तेरे ਕਰਨਾ हाथ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। तू की गल हाँ जी, करना करनी है? चाहना तू है। गल चलो। करने जगह होंदा इन्नी देर दा पिट सियापा ही ਫਿਰ पाना ਮੇਰਾ सी। ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ पिट सियापा ਕਰਨਾ। पाना दे जवाब फिर है मिर्जा साहब दे शेर, मिर्जा साहब दे मरीद ਮੇਰੇ दे ਕੋਲ शेर। ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। तू दे लेंगे जवाब? ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ दे लेंगे ਕਿਹਾ जवाब? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ चल दे, तेरे नाल गल करना चाहना, दे जवाब। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। हाँ टॉपिक मेरे ਨਾਲ डिसाइड कर पहला, टॉपिक की है। टॉपिक ये है कि मिर्जा साहब के मुरीद ने ये मिर्जा साहब को जो खत लिखा है, इसमें मिर्जा वो कहता है साहब कि के मिर्जा मुरीद साहब का मैंने पूछा जवाब जो है नहीं वो देना। कब आए? एक मिनट, ये टॉपिक है। मिर्जा साहब के मुरीद के जवाब मैं क्यों दूं? अच्छा जवाब दे दो। चलो टॉपिक आप दूसरा रख लेने ना। कैसे और नहीं मैं दूंगा ये जवाब? याद रखना, गाल वो उस टॉपिक को डिसाइड करके तुम लोगों ने अपनी तरफ से कोई अल्फाज डाले, बात को रिपीट किया तो मैं अच्छा नीचे उतारूंगा। मिर्जा ट्रुथ भाई माइंड नहीं करना, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ अगर ਵਿੱਚ मिर्जा ਤੁਹਾਡੇ साहब ना कहना, ये मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, ये तुम्हारा जो अभी तुम बोलने शुरू हुए हो। हाँ जी मिर्जा साहब, फरहान- चलो जी मिर्जा फरहान, साहब लाने हैं। हाँ, इज्जत से नाम लेना और जरा सा ओके, तुम तुम्हारे भी इज्जत अल्फाजों में- इज्जत से बात करना, हम भी इज्जत से करेंगे। है मिर्जा और कोका वाइन का टॉपिक है जी, करनी ही बात। जी थले थले दफाओ चल ऐ करना, मैं मेरे नाल गल करनी है, मैं करना जी। आप लोग भी हमारी उससे ना शराफत से नाजायज फायदा मत उठाओ, गलत बात मत करो। लफज नहीं ठहक तुसा ठीक कीता है कोको वाइन दा ते मिर्जा साहब दा इकट्ठा जिक्र नहीं सी करना चाहिए। सर नहीं, बात की गलत, आपकी किताब में लिखा हुआ है। बहुत सारी नहीं तो- चीजें फिर हम जिक्र करेंगे, फिर तो सब पिटना है। देखें भाई, आप जब हमारे आपको भाई हैं, इज्जत दे इज्जत रहे कर रहे हैं, हैं। आपको इज्जत किसी दे भी रहे हैं, जगह मिर्जा भाई, साहब आप और कोका अपने वाइन का नाम सबको इकट्ठा नहीं लिखा हुआ, गलत बयानी कर रहे हैं आप। ना अच्छा करो, मलिक मैं साहब बता रहा हूँ। और दूजियां गल्लां छड्डो यार, दूजे मौजू गलत मौजू वाल ना जाओ, उधर निरी भंडी है। ऐसा जवाब लेके दियो मलिक साहब। मलिक साहब आप बता रहा ऐसा हूँ, जवाब- इसने ये दोबारा बदतमीजी की ना, ये जो बात यार ना चुप तो नो छड़ दे, तू इस सवाल का जवाब दे। नहीं मलिक साहब, इस सवाल का जवाब लेके दे। इस ज़िया ने ये आमिर बदतमीजी साहब, की ना, मैंने इसको भी कहा आमिर था। साहब,
यार आप खुद जी। एक बंदा बात करो ना, सारे विच में हला हला पे कर दो। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਬਾਇਲੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਬਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1988 ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 1988 ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਦੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਦੀਅਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਅਨ ਇੱਕ ਹਰਮ ਹੈ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਆਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਰਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो है। अच्छा बात मिर्जा ताहिर साहब ने हमारी भी बात सुने ना। अच्छा कर ले, आपकी बात नहीं, आपकी बात समझ में आ गई ना, आपकी बात समझ नहीं, में मेरा आ मेरा गई। मौका पूरा तो मैं और देना मैं तो कोई मिर्जा ताहिर सरकारी साहब में ने- नहीं, हाँ मुझे बात समझ में आ गई, अभी जवाब सुनो। आपने जो बात की, मैं आपकी बात वक्ती तौर पर मान लेता हूँ कि ये जो 2 बंदों के दरमियान था, ये इस मोबाइल के असूल नहीं थे, मैं मान ली। अभी इस मोबाइल के क्या असूल थे वो आप दिखा दें। जब आप दिखाओगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा इसके नहीं है। बाकी आप यारियां बारियां मारते रहे, हमारा उनसे ताल्लुक थोड़ी है कि आपको मनवाना है। अब इस मुनाजरे के असूल दिखा दे। ये असूल तो नहीं थे जो हमारे खलीफा साहब ने बयान किए। अभी वो कौन से असूल थे, किन पर हुआ है, वो आप बता दें। बताएं जी हमें साहब। इस मोबाइले के अंदर कोई नई बात नहीं थी। यही मोबाइले के वो बातें 88 वाली इन्होंने पेश की मुरब्बी उस्मान ने अलियास तार साहब के सामने। अलियास तार साहब ने अपनी तरफ से मोबाइले का चैलेंज दे दिया। तो ये दोनों फरीकैन ने कराची में 3 जून 1999 को एक दूसरे को मोबाइले का चैलेंज दिया। अलियास तार साहब की तरफ से जो मोबाइले का चैलेंज था वो मैंने पढ़ के आपको सुनाया है कि अगर मिर्जा साहब दावे में सच्चे हैं तो मुझ पर 1 साल के अंदर अंदर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो, और अगर मिर्जा साहब दावे में झूठे हैं तो फिर इन पर अल्लाह की लानत हो और इन पर अज़ाब नाज़िल हो। ये उनका अपनी तरफ से मोबाइले की इबारत है जो अलियास तार साहब ने पेश की। मिर्जा ताहिर साहब की वो वाली इबारत जो 1988 वाली थी ना, वो उन्होंने उनको दे दी कि भाई हमारे ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगाते हो, ये इल्ज़ाम लगाते हो, ये इल्ज़ाम लगाते हो, तो हम इन सारे इल्ज़ामात में सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं। उनमें से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ बातें उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बयान की हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि एक तो मिर्जा साहब को रूहानी बेटा मानते हैं, कलमा इनका अलहदा है जो सीरतुल महदी में लिखा हुआ है। मौका मुझे नहीं चाहिए। उन 2 बंदों का तहरीरी तौर पर कोई या कहीं सबूत है कि उन्होंने किस पर किया था मोबाइल, किस पर किया था, वो है सबूत हो रहा है। आप क्या मानते हो? आपकी बातें सुनकर तो उन्होंने नहीं बात की थी, तुसी बोले पता नहीं पैदा भी हो तो नहीं, कितने सो कितने नहीं। अभी जो उन्होंने जिन्होंने 2 भोले भाले अहमदियों के साथ ये बात की थी, उनका कोई तहरीरी सबूत आपके पास है कि उन्होंने क्या डिमांड की थी? हाँ जी, मैं उदू भी जब 1999 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਅਲਿਆਸ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਮਰਬੀ ਦੇ,
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 15 ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 15 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, 99 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਸ਼-ਓ-ਹਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ सबूत अकायद लगाएं, नज़रियात गलत वो लगाएं ਸੁਣੋ लगाएं ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ